The award category for Indian Idol of the Year 2021, Cardiac Sciences. The winner is Dr. Deepak Puri, the Director of Max Super Speciality Hospital, Mohali. Dr. Puri completed his MBS from Indira Gandhi Medical College, Shimla, and completed MS and MTech from Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. Successfully performed over 6,000 beating heart bypass surgeries and contributed in over 70 national and international journals. I am Director of Cardiovascular and Thoracic Surgery at Max Hospital Mohali, and I am Global Chairman of Cardiomergen, which is a global group promoting integrated approach to comprehensive delivery of cardiovascular care. So, sir, we know that COVID is again coming, right? So, we know the normal criteria is how to prevent it, but what is your a separate, different opinion on how we can prevent it? Actually, prevention is the best way to deal with the new onset of the new strain, and I think social distancing and wearing masks and maintaining all the hygienic precautions that would help. And also, if anybody is having any symptoms, they should report immediately to the nearest center and get themselves treated. That is the only way we can prevent the spread. सर, आपको इस अवार्ड फंक्शन में भाग लेके कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ बुलाया गया, और आने वाले टाइम में जो है हम चाहते हैं कि जो इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं उन लोगों को इनकरेज करने के लिए, और उन लोगों के आइडियाज़ जो है वो पूरी कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए इस तरह के फंक्शंस होने चाहिए. Thank you, sir. Very good afternoon, everyone. We are going to start one small conversation with our honorable guest, Dr. Deepak Puri. So please welcome Dr. Deepak Puri. Welcome, doctors. Thank you. So let's start. We all heard about heart attack. So what is symptoms of heart attack? The most common symptom of heart attack is severe chest pain, which doesn't get relieved on taking rest also. And other symptoms include atypical chest pain, which may be radiating to either shoulder or maybe the jaw. Or patient may present with shortness of breath, sometimes cold sweats. Sometimes there may be typical symptoms, especially in women and in diabetic patients. There may not be any pain. The patient may just feel weakness, or sometimes feel headache. Sometimes the patient may suddenly collapse and without any pain or any other symptom. So what do you think? What is the cause of heart attack? Heart attacks, they are caused because of blockages of the arteries, which are the coronary arteries supplying the heart. So the process initiates in the early age because of atherosclerosis, and cholesterol gets deposited in the wall of the vessels, and slowly it keeps on narrowing the artery, and then suddenly sometimes there may be a crack in the plaque, or there may be some thrombus or clot, which can suddenly occlude the artery. So how common is heart attacks? Heart attack is very common nowadays. It is the leading cause of death, and in India, heart attack occurs in much younger age. Yeah. The Indians, most of the Indians, they are less than 50 years of age when they get their first heart attack, and also, the severity of the heart attack is much worse in Indians, and the chances of getting a second heart attack within 1 year after the first heart attack, they are also more in Indian population. Can a heart attack be prevented? Definitely, heart attacks can definitely be prevented, but we have to initiate the process early in the childhood itself, which is known as primordial prevention.
In this, we have to control our lifestyle, and we have to educate the child so that they adopt healthy lifestyle. And later on, when the risk factors occur, then we have to adopt primary prevention. So we identify the risk factors and then we control the risk factors. And later on, if we are still not able to control the risk factors and some symptoms might occur, so then we have to diagnose the disease in the early stage, and then we have to give appropriate treatment. Sometimes patient may need interventions, so we don't have to delay the interventions. We have to take timely advice and go ahead with the interventions to avoid fatal complications. And even after the intervention, then you have to get a proper rehabilitation so that you can go back to your work and perform in a better way. And later on, you have to take secondary prevention so that the attack doesn't come again. So it is a complete spectrum of care. It's not just one thing that you should take care of. What are the links between in smoking and heart diseases? Smoking is one of the very important risk factor that can cause heart attacks, and it actually is one of the leading causes of death nowadays. And those who smoke, they are expected to have a lesser lifespan. Any advice for them? Yeah, absolutely, they should not smoke at all, because it reduces your lifespan by almost 13 years. अक्सर कहा जाता है कि जैसे तस्वीरों में हम ऊपर से मुस्कुराते, उसी तरह से हमारा दिल खुश रहना चाहिए। तो उस दिल को खुश रखने के लिए हम क्या क्या करें और किस तरह की चीज़ों से बचें? दिल को खुश रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों से बचना है। उसमें हमारे को अपने रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, जिसमें फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो हमारे को कम से कम हाफ एन आवर वॉक एवरी डे करना चाहिए। उसके अलावा हमको डाइट कंट्रोल करना है, जिसमें डाइट में बैलेंस डाइट लेना है और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा अधिक होनी चाहिए। 5 to 6 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए हमारी डाइट में एवरी डे, which most of the Indians they are not taking. So डॉक्टर पूरे आई जस्ट कि अभी जो हमारी दिनचर्या हुई है या कोविड-19 पैंडेमिक के और देखें या फिर जो ओमिक्रॉन का कहा जा रहा है, तो ओमिक्रॉन का किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा और जो हमारी लाइफस्टाइल जो चेंज हुई है तो उसका किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है आजकल के युवाओं पे, जो आजकल देखा जा रहा है कि काफ़ी कम एज में हार्ट अटैक्स के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह की लाइफस्टाइल हम फॉलो करें, हमारे युवा फॉलो करें, ताकि आगे फ्यूचर में जो है इससे बचा जा सके या फिर इसे कम किया जा सके? यंग एज में हार्ट अटैक्स इंडियंस को पहले से ही होते थे और अभी ये ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी इस तरह से हुआ है कि सडनली उनकी डेथ हो गई है कार्डियक कॉज से। प्लस हमारे जो पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है वो यंग लोगों में भी कईयों में हो रही है, जिसमें कि सडनली हार्ट अटैक होता है। कुछ तो कोविड की थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है, जो क्लॉट बन जाते हैं आर्टरी में। कुछ जो होता है कोविड की वजह से हमारे हार्ट के मसल को डैमेज होता है। कुछ पार्ट ऑफ इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से भी मल्टी ऑर्गन डैमेज होता है। उसमें हार्ट भी एक मेजर ऑर्गन होता है। प्लस उसमें जो कुछ पार्ट हो रहा है क्योंकि वो कोविड से जो है हमारे लंग्स डैमेज होते हैं, तो उससे ऑक्सीजन प्रॉपर ऑर्गन्स को नहीं मिल पाता, तो उसमें भी हमारे इनडायरेक्टली हार्ट को भी डैमेज होता है। और बहुत सारे लोग को रिदम की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें हार्ट फड़क जाता है, उसमें एरिथमिया बोलते हैं जिसको, उसमें सडनली कोलैप्स हो सकता है, या फिर उसमें स्ट्रोक हो सकता है जिससे कि ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उससे पैरालाइज हो जाता है या फिर स्पीच चली जाती है। और कई बार पेशेंट को जो होता है हार्ट फेलियर में चला जाता है, क्योंकि हार्ट का मसल इतना डैमेज हो जाता है कि वो पंप नहीं कर पाता पूरे ऑर्गन्स को ब्लड। सो ये तो हो गई दिल को खुश रखने की बात और कैसे बचे, लेकिन जो दिल को स्वस्थ रखना है वो कैसे रखना है, इसके बारे में अगर कुछ हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहें तो।
स्वस्थ रखने के लिए एक तो मैंने आपको फिजिकल एक्टिविटी डाइट बताया, प्लस हमारे को स्मोकिंग अवॉइड करना है ऑल टुगेदर, नो And स्मोकिंग what एट ऑल। about alcohol? अल्कोहल जो होता है वो वैसे तो हमारी रिकमेंडेशन होती है कि दोज हु डोंट कंज्यूम अल्कोहल दे शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल, देयर इज नो इंडिकेशन टू स्टार्ट कंज्यूमिंग, बट दोज हु कंज्यूम अल्कोहल दे शुड टेक इन मॉडरेशन, मतलब कि वो लिमिट में लें। और मैन के लिए 2 ड्रिंक्स पर डे से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, और फीमेल्स के लिए 1 ड्रिंक से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। और कुछ लोग होते हैं वो जो डेली नहीं ड्रिंक करते, लेकिन सडनली वो फ्यू मंथ्स के बाद एक दिन करते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में कर लेते हैं। और वैसे भी हमारा जो इंडियंस का ड्रिंकिंग पैटर्न है वो उसमें वो काफ़ी तेज़ी से उसको ड्रिंक को लेते हैं, जिसमें हमारे ब्लड लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं अल्कोहल के। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो वाइन लेते हैं जिसमें लो अल्कोहल कंटेंट होता है, और उसको स्लोली लेते हैं और विद मील लेते हैं, उसमें उसकी अब्जॉर्प्शन भी स्लो होती है और उसमें उतने हार्मफुल लेवल्स नहीं अटेन होते। तो हमारे को अगर जो नहीं रिस्ट्रेन कर सकते, दे शुड ट्राई टू अडॉप्ट हेल्दी वे ऑफ ड्रिंकिंग, एंड ऑल्सो दे शुड लिमिट देयर नंबर ऑफ ड्रिंक्स। वो अक्सर जो सीने की दर्द होता है अचानक से, तो उसको हार्ट अटैक से जोड़कर देखा जाता है। समटाइम पीपल डजंट नो सर, तो उसमें मतलब कैसे पता चले कि ये हार्ट अटैक्स है या सीने में नॉर्मल दर्द है, तो उसको मतलब इसका क्या पता कैसे चलता है? जो फर्स्ट इसका सिम्टम्स होते हैं वो पता कैसे चलता है? उसमें हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो कंफ्यूज करते हैं उसको कि गैस प्रॉब्लम है या मस्कुलर पेन है। तो उसमें बेस्ट ये रहता है कि अगर किसी को इस तरह की पेन हो जाए तो उनको इमीडिएटली नियरेस्ट जहाँ कार्डियक फैसिलिटी अवेलेबल है उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और वहाँ पे जाके उसको डायग्नोज करने के लिए फिर हम ईसीजी करते हैं और ब्लड के टेस्ट होते हैं जिसको ट्रोपोनिन बोलते हैं, तो वो हम करके फिर उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो उसमें कई तरह के हार्ट अटैक हो सकते हैं। एक होता है जो जिसमें एसटी एलिवेशन होता है, ईसीजी में चेंजेस होती हैं, और एक होता है जिसमें चेंजेस नहीं होती, उसमें फिर वो ट्रोपोनिन लेवल से देखते हैं कि बढ़ रहा है ट्रोपोनिन लेवल की नहीं। और एक होता है जिसमें कि ना ट्रोपोनिन लेवल बढ़ता है और ना ही ईसीजी में चेंजेस होती हैं। डिस्कस अबाउट बॉलीवुड। सो बॉलीवुड में रिसेंटली ऐसे कई केसेस आए जो देखने को मिले कि जिसमें हार्ट अटैक अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंस। तो उसको वो उस दौर में क्या करना चाहिए इंसान को, कैसे पता चले, मतलब जिस तरह से अचानक उससे बचने के लिए? उसके बचने के लिए हमको सबसे पहले जो है अपना लाइफस्टाइल जो है उसमें से रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, और दूसरा हमारे को ये देखना चाहिए कि हमारे को कोई हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, क्योंकि जो हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल है, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हम डाइट क्या लेते हैं, स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, अल्कोहल तो नहीं लेते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, हमारा शुगर लेवल कैसा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, हमारा पल्स रेट कितना है। तो ये सब रिस्क फैक्टर जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम स्ट्रेस कितना लेते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो भी ज़्यादा प्रोन होते हैं, और आजकल बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से भी हो रही हैं। तो कुल मिलाकर इसका सटीक उपाय है लाइफस्टाइल बेहतर फॉलो करना, अल्कोहल से बचना और जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहना। डेफिनेटली, और हमको जो जितना भी अपना फिजिकल एक्टिविटी और डाइट प्लान और जो भी हम लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उसमें हमेशा मेडिकल एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जिम में जाते हैं, वहाँ पे वो अनक्वालिफाइड लोग उनको बहुत सारे सप्लीमेंट खाने के लिए दे देते हैं, उनको बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी कराते हैं जो कि उनकी बॉडी टॉलरेट नहीं करती। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि कई लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करते थे, अपरेंटली फिट थे, लेकिन सडनली उनको हार्ट अटैक हो गया। तो ये बात ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव एक्सरसाइज भी हार्मफुल हो सकती है हमारी बॉडी के लिए। तो हमारे को पहले मेडिकल सुपरविजन में अपने जो रिस्क फैक्टर है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उसके बाद
हर इंसान के लिए अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि उसको क्या डाइट लेनी है और उसको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी है, जो कि मेडिकल सुपरविजन में ही हो सकती है। अदरवाइज़ फिर अनक्वालिफाइड लोग से अगर आप ऐसे एक्सेसिव वो लोगे ट्रेनिंग, तो उसमें बाद में हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं। Thank you so much, Dr. Puri. Thank you. And big congratulations. थैंक यू सो मच। थैंक यू।